Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold.
पैंथर के नाम से मशहूर टीम पिंक पैंथर मेगा की है सर, उन्होंने ये लिखा दिया गलत बोलना पड़ता सर, बच्चे तब इसे लिखा। जिस टीम की कैप्टन मेघा है पिंक पैंथर के नाम से मशहूर, और नीलम राणा व्हाइट लायंस। तो दोनों ही टीमों के बीच में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच में कड़ी स्पर्धा देखने को मिलेगी यहाँ पे अगले कुछ ही पलों में। देखना ये होगा कि कौन सी टीम किस टीम पे भारी पड़ती है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच में जबरदस्त जोश उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और जो उनके प्रो प्लेयर्स हैं रणनीति बनाते हुए यहाँ पे मैच को जीतने के लिए। ये टेबल देखने वाले रेफरी से निवेदन है कि वो खिलाड़ियों की संख्या को सुनिश्चित करें, मैदान पे किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी से बचें। और इस बीच खेल शुरू होता हुआ पिंक पैंथर की छात्रा 6 नंबर की जर्सी हुए पहने शिखा बॉल को इस बीच बॉल को पास करेंगे। मैच में तो इस बात का भी ध्यान रखें कि समय से वो तेज करे। इस बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच में, और एक प्रयास वहाँ पे था लेकिन उसको रोक लिया गया। किसी भी तरीके की गोल होने की संभावना को खत्म किया। अभी भी दोनों ही टीमों को खाता खोलने के लिए अपनी टीम के लिए खाता खोलने के लिए विचार करना होगा। सोनू अपने कब्जे में बॉल को लिए हुए, देखना ही होगा कि कितना कितनी जल्दी सफल होते। यहाँ पे एक मौका बन सकता था लेकिन बॉल बाहर जाती हुई, तो किसी भी तरीके के गोल होने की संभावना को खत्म करते हुए अभी भी स्कोर 0 दोनों ही टीमों के लिए। दोनों ही टीमों को इंतजार करना होगा अपने खाता खोलने के लिए। जल्द से जल्द दोनों ही टीमें चाहेंगी कि जल्द से जल्द यहाँ पे गोल करके बढ़त बनाई जाए और आत्मविश्वास में वृद्धि की जाए। तो देखना ये होगा कि कौन सी टीम सफल होती है यहाँ पे गोल करने के लिए। एक और प्रयास वहां पे लेकिन गोल की तरफ से प्रयास को रोक दिया गया। यहाँ पे कैरिट का सिग्नल रेफरी के द्वारा, जो कि विजित सर के द्वारा किया गया था। फिर से एक मौका अपोजिशन के खिलाड़ी सोनी सर के द्वारा और फिर से बाहर जाती है बॉल। दोनों ही रेफरी पैनी नजर बनाए उस मुकाबले में। हाइट बॉल दर्शकों के बीच में भी काफी जोश इस मुकाबले को दोनों टीमों का हौसला बढ़ाते हुए इस बीच विजित सर के द्वारा एक बार फिर से बॉल को लिफ्ट कर दिया गया रेफरी का सिग्नल। तो इस तरीके से जो टेक्निकल फॉल्ट है उनको करने से बचना होगा, अन्यथा इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। इस बीच और एक प्रयास वहाँ पे एक और प्रयास, लेकिन गोलकीपर की सूझबूझ भरी रणनीति से उसको रोक लिया गया। किसी भी तरीके की गोल की संभावना को खत्म करते हुए अभी भी स्कोर खाता खोलने के लिए दोनों ही टीमें इंतजार करती हुई। देखना ये होगा कि कौन सी टीम सफल हो पाती है। पहले एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास यहाँ पे प्रो प्लेयर सोनू सर के द्वारा ये गोल किया गया। तो इस तरीके से पहला गोल इस मुकाबले का रेफरी कृपया मैच में अपनी पैनी नजर बनाए रखिए। दोनों ही रेफरी से अनुरोध है कि वो मैच में अपनी पैनी निगाहें बनाए रखें, किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी से बचें। तो निश्चित रूप से पिंक पैंथर के हौसले बुलंद, क्योंकि एक गोल की खुराक उनको मिल चुकी है। इस बीच विवेक सर के द्वारा फिर से एक बार प्रयास किया गया, लेकिन
गोल पोस्ट से बाहर जाती हुई बॉल किसी भी तरीके की गोल की संभावना को खत्म किया। स्कोर अभी भी पिंक पैंथर 1-0 से बढ़त बनाए हुए इस मुकाबले में। देखना ये होगा कि क्या अंत तक इस बढ़त को कायम रख पाते हैं और इस मैच को जीत पाते हैं या फिर विपक्षी को मौका देते हैं बढ़त को कम करने का। इस बीच सुधीना जो बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं, के पास बॉल, लेकिन उसको गोल के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाई, तो बॉल बाहर जाती हुई। तो बहुत ही बेहतरीन प्रयास यहाँ पे, उतनी चौकन्नी वहाँ पे वाइड लाइन खिलाड़ी गोलकीपर प्रियंका यादव फिर से रिलीज को पास देते हुए बॉल फिर से बाहर जाती हुई यहाँ से। एक और प्रयास सोनी सर वहाँ पे लेंगे, लेकिन बॉल को विदित सर के द्वारा रिसीव कर लिया। वहाँ पे गोलकीपर अदिति जो कि बॉल को रोकने में नाकामयाब रही और भाग्यशाली रही कि बॉल गोल पोस्ट में जाके नहीं लगी। तो इस तरीके से अभी भी गोलों की संख्या 1-0 की बढ़त बनाए हुए इस मैच में पिंक पैंथर, जिसकी की कैप्टन मेघा की टीम पिंक पैंथर के नाम से मशहूर इस मुकाबले में अब तक आ गए। पहले क्वार्टर का जो खेल है वो धीरे धीरे समापन की ओर, इस बीच अब तक जो खेल हुआ है इसमें पिंक पैंथर 1-0 की बढ़त को कायम रख पाते हैं और इस मुकाबले को जीत पाते हैं, या विपक्षी टीम इस बढ़त को कम कर पाती है। इस बीच गजब का जोश उत्साह यहाँ पे सभी मौजूद दर्शक राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे बीपीएड के द्वारा ये मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि बीपीएड के बच्चे आपस में इस मैच को खेल रहे हैं। इस बीच एक और प्रयास किया गया वहाँ पे, लेकिन बॉल बाहर जाती हुई किसी भी प्रकार का गोल होने की संभावना को खत्म किया। सभी दर्शकों को जो भी हमसे देर में जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि आज शाम को ठीक 3:30 बजे चौरास खेल के मैदान में जो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है शारीरिक शिक्षा विभाग के द्वारा यूनिवर्सिटी बोर्ड और डीएसडब्ल्यू के सहयोग से जो फुटबॉल का टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है वो ठीक 3:30 बजे उसका फाइनल मुकाबला आज चौरास खेल के मैदान में स्कूल ऑफ एजुकेशन वर्सेज स्कूल ऑफ साइंस के बीच में खेला जाएगा। तो आप सभी दर्शक वहां पे सादर आमंत्रित हैं उस मैच को देखने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए। इस बीच यहाँ पे पहले क्वार्टर का समापन होता हुआ और इस बीच जो स्कोर था वो 1-0 की बढ़त बनाए हुए पिंक पैंथर जो कि मैदान में उतरेंगे। रेफरी का सिग्नल फिर से दूसरे क्वार्टर के लिए, और दोनों टीमों के कैप्टन को ये निश्चित करना चाहेंगे कि प्रत्येक क्वार्टर में उनको 2 गर्ल्स को चेंज करना होगा, 2 गर्ल्स। दूसरे क्वार्टर की फिर से शुरुआत होने वाली है। सोनू वहाँ पे बॉल को पुश करेंगे, वहाँ पे सोनू के पास बॉल। देखना ये होगा कि क्या रणनीति रहती है दूसरे क्वार्टर में उनकी, क्या इस बढ़त को और आगे बढ़ा सकते हैं या फिर विपक्षी को मौका देते हैं गोल करने का। इस बीच बॉल 3 नंबर की खिलाड़ी के पास है जो कि कैप्टन है पिंक पैंथर की। बहुत ही ध्यान से खेलना, तीनों के खिलाड़ियों को किसी भी तरीके के जो टेक्निकल फॉल्ट है उनसे बचना होगा ताकि किसी भी तरीके का खामियाजा उनको न भुगतना पड़े इस मुकाबले में। इस बीच सोनू के पास बॉल, निश्चित रूप से गोल के लिए अटेम्प्ट करना चाहेंगे, क्या कन्वर्ट कर पाते इसको गोल के रूप में, ये देखने वाली बात होगी। वहाँ पे दीवार की तरह खड़े हैं व्हाइट लायंस के खिलाड़ी, किसी भी तरीके की गोल की संभावना को इस तरीके की बॉल एक बार फिर से मैदान से बाहर जाती हुई।
गजब का जोश उत्साह के साथ दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बारिश हल्की हल्की बारिश में भीगने के बावजूद भी उनके जोश उनके उत्साह में किसी भी तरीके की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इस बीच 6 नंबर की दो खिलाड़ी उसको रिसीव नहीं कर पाए और बॉल बाहर जाती हुई फिर से उनके कैप्टन बॉल को मैदान में वापस प्रो प्लेयर सोनू के द्वारा बॉल को रिसीव कर दिया गया और इस बीच फिर से एक प्रयास वहां पे गोल करने का, लेकिन बॉल कन्वर्ट नहीं करता। इस बीच फिर से मानसी के पास बॉल और वाइट लायंस के खिलाड़ी लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से गोल करने का। एक और प्रयास वहां पे हो सकता है लेकिन बॉल को रोक लिया गया। बॉल बाहर बनाए हुए पिंक पैंथर इस मुकाबले में अब तक आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से इस बढ़त को कायम करना चाहेंगे और यहाँ से इस मुकाबले को जीतना चाहेंगे। अभी दूसरे क्वार्टर का खेल यहाँ पे चल रहा है, ठीक से इस बढ़त को कम करते हैं और इस मुकाबले में आगे आते हैं। इस बीच विदित सर जो कि प्रो प्लेयर हैं तो वाइट लायंस की तरफ से उनके बीच एक मौका था लेकिन तो कन्वर्ट नहीं कर पाए, बॉल फिर से बाहर जाती हुई। यहाँ पे फिर से प्रो प्लेयर सोनू जो कि बॉल को मैदान में भेजते हुए इस बीच 4 नंबर की जर्सी पहनी हुई रेखा के द्वारा बॉल को रिसीव कर लिया, उन्होंने पास दिया सीखा को। इस बीच और एक प्रयास वहां पे रेफरी के सिग्नल फिर से काफी रोमांचक मुकाबला दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच। बॉल अरे काट दे हवा में ट्रेवल कर, अन्यथा इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, टीम से बाहर होना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोनों ही टीमों के खिलाड़ी, किसी भी तरीके की कोई भी टेक्निकल फाउल्स ना करें। इस बीच सोनू सर फिर से एक अटेम्प्ट करेंगे और उसको रोकने के लिए दीवार की तरह खड़े व्हाइट लायंस के खिलाड़ी क्या इस प्रयास को गोल के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस बीच पिंक पैंथर के खिलाड़ी के द्वारा बॉल को रिसीव कर लिया गया। फिर से खेल आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे वो निकिता के पास व्हाइट लायंस की खिलाड़ी निकिता के पास बॉल, देखना ही होगा कि क्या कितना सटीक पास हो रहे थे, लेकिन वहां पे शिखा के द्वारा बॉल को रिसीव कर लिया गया। एक दिन खिलाड़ी फिर से बाहर अच्छी इसके पीछे प्रो प्लेयर सोनू सर बॉल को आगे बढ़ाते हुए गोल का प्रयास उनका था लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गोल कर नहीं पाए। इस बीच विदित सर बॉल को फिर से वहां पे संघर्ष देखने को मिला और गोल का इजाफा यहाँ पे प्रो प्लेयर सोनू सर के द्वारा। तो इस तरीके से जो दूसरा गोल था जो पिंक पैंथर की कैप्टन है मेघा चंदोला के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से अब 2-0 की बढ़त बना दी है पिंक पैंथर ने। निश्चित रूप से उनका उत्साह उनका आत्मविश्वास बढ़ा होगा इस गोल से। और वहीं पे अब जो व्हाइट लायंस है उनको भी कुछ अलग से करना होगा इस मुकाबले में आगे आने के लिए, अन्यथा इस तरीके से वो मैच को गंवा देंगे अपने हाथों से। कुछ नई रणनीति अपनानी होगी, जो अंतर है गोल का उसको कम करने के लिए। इस बीच दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच संघर्ष। सर लगातार अपनी रणनीति अपना अनुभव इस मुकाबले में जोड़ते हुए सटीक पास अपने खिलाड़ियों को देते हुए इस बीच थोड़ा तो सरफेस है थोड़ा अनुकूल नहीं है खिलाड़ियों के लिए, इसके बावजूद भी लगातार प्रयास उनका गोल करने का सरफेस खिलाड़ियों के अनुकूल नहीं है।
व्हाइट लायंस की खिलाड़ी निकिता कन्या थोड़ा छोटी हुई है, देखिए होगा कि क्या मैच को खेल पाते आगे जारी रख पाते, लेकिन खुशी की बात यह है कि ज्यादा घायल नहीं हुई तो फिर से मैच में बनी हुई है। और इस बीच विनिसर के पास एक मौका, लेकिन बॉल बाहर जाती हुई किसी भी तरीके का गोल होने की संभावना को खत्म करते हुए स्कोर अभी भी 2-0 की बढ़त बनाए हुए पिंक पैंथर के खिलाड़ी इस मैच में गजब का जोश, गजब का आत्मविश्वास उनके अंदर भरा हुआ, 2 गोलों की खुराक उनको मिल चुकी है। देखना ये होगा कि क्या इस बढ़त को कायम कर पाते हैं अंत तक। और अभी दूसरे हाफ का खेल धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आपको बता दें कि 7 मिनट का क्वार्टर खेला जाएगा, 4 क्वार्टर्स खेले जाएंगे। जो दूसरा क्वार्टर इस तरीके से दूसरे क्वार्टर की समाप्ति की घोषणा रेफरी के द्वारा, तो अब तक दोनों ही क्वार्टर में एक ही गोल करते हैं। व्हाइट लायंस की कैप्टन नीलम राणा से रिक्वेस्ट है कि वो टेबल पर आके अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के नाम बताने की कृपा करें। नीलम राणा, शुभम पाल जो कि व्हाइट लायंस के कोच है, प्लीज टेबल पे आके इस बीच यहाँ पे जो सेकंड हाफ यानी तीसरा जो क्वार्टर है वो प्रारंभ होने वाला है। और देखना ये होगा कि इस क्वार्टर में क्या व्हाइट लायंस की रणनीति रहती है इस मुकाबले जीतने के लिए, जो कि 2-0 से 3। निश्चित रूप से इनके प्रो प्लेयर विदित सर पूरा अच्छा रोकना चाहेंगे। यहाँ पर नर्री भैया ने भी कमबैक किया है, एक बार बड़ी चोट से उभर कर आ रहे हैं। अब देख रहा होगा कि क्या होता है। यहाँ नर्री भैया फिर से ग्राउंड पर काफी दिनों में उतरे हैं, देख रहा होगा कि क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। बड़े ही सूझ समझ के खेलते हैं। नर्री भैया बहुत ही आक्रामक खेलते हैं यहाँ पर। नर्री भैया एक आक्रामक खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, जो भी काफी धुआंधार पारियों के लिए जाने जाते हैं ये। और गोल सेव यहाँ पर गोलकीपर ने इसके द्वारा इसको रोक लिया गया, किसी भी तरीके की गोल की संभावना को नष्ट करते हुए स्कोर अभी भी। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मेजर ध्यानचंद की जन्मदिन पर निश्चित रूप से यहाँ से इस बढ़त को बनाए रखना चाहिए और इस मुकाबले को जीतना चाहिए। हॉकी का शानदार मुकाबला चलता हुआ पिंक पैंथर और नाइट राइडर्स के बीच काफी। और यहाँ पर क्रिकेट यहाँ पर भी सर काफ़ी कड़ा मुकाबला खेलते हुए और काफ़ी। और ये गोल ना था, भाग्यशाली रहे वहाँ पे कि गोल बॉल बाहर जाती हुई गोलकीपर उसको गोलकीपर को छकाती हुई बाहर चली गई। भाग्यशाली रहे कि गोल पोस्ट के अंदर बॉल नहीं गई। इस बीच नरेंद्र प्रसाद वहाँ पे बॉल को यहाँ पर देखना होगा कि क्या होता है। वो नर्री भैया ने सेकंड हाफ में ग्राउंड पर उतरे हैं और यहाँ पर फिर एक बार मुकाबला। और नर्री भैया के यहाँ पर बॉल लगती हुई हाथ में। काफी आक्रामक खिलाड़ी हैं, बदला तो लेंगे। नर्री भैया इसी अंदाज में जाने जाते हैं कि जवाब देते हैं और बॉल सीधी सीमा रेखा के बाहर। कुछ अलग से करना होगा, कुछ नई रणनीति अपनानी होगी ताकि इस मुकाबले में वो बनी रहे। धीरे धीरे तीसरे क्वार्टर का खेल भी समापन की ओर बढ़ता हुआ और
अभी तक खाता नहीं खोल पाए व्हाइट लाइन के खिलाड़ी, तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि खाता खोल के इस मुकाबले में कुछ अपने खिलाड़ियों में जोश भरना चाहेंगे और उनके ग्रुप में जिसके कैप्टन को ये नई रणनीति बनानी होगी कि किस तरीके से इस मुकाबले में और ये कह रहे रहा जा सकता है। इस बीच एक बार फिर से बॉल बाहर जाती हुई निश्चित रूप से यहाँ पे जो कोच है व्हाइट लाइन से उनको कुछ इनपुट्स देने होंगे, कुछ नई रणनीति बनानी होगी ताकि इस मुकाबले को जीत पाए यहाँ पे। और वही जो पिंक पैंथर्स के खिलाड़ी हैं वो चाहेंगे इस बढ़त को कायम रखें और यहाँ से जीत सुनिश्चित करें। इस बीच एक और प्रयास था वहाँ इस बीच एक और प्रयास था वहाँ पे और धीरे धीरे नरेंद्र प्रसाद सूरी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, लेकिन वहाँ पे सूझबूझ बड़ी रणनीति के द्वारा गोलकीपर रेखा के द्वारा बॉल को रोक लिया गया। इस बीच फिर से खेल शुरू होता हुआ धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता हुआ तीसरे क्वार्टर का खेल अभी जारी है। समय बीतता हुआ लेकिन अभी भी खाम के खिलाड़ी निश्चित रूप से इस तीसरे क्वार्टर में उनको कुछ अलग से कर दिखाना होगा, अन्यथा इस मैच को हार के उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके कैप्टन, उनके प्रो प्लेयर्स तथा कोच को कुछ ऐसी रणनीति बनानी होगी इस मुकाबले को जीतने के लिए खाता खोल पाए इस तीसरे क्वार्टर में और जो अंतर गोल का है उसको कम कर पाए। इस बीच गोल के रूप में कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन बॉल बाहर जाती हुई तो किसी भी प्रकार का गोल होने की संभावना को फिर से हद बता रही है। इस पर अभी भी 2-0 की बढ़त बनाए हुए पिंक पैंथर के खिलाड़ी इस मुकाबले में निश्चित रूप से आत्मविश्वास में वृद्धि, जोश के खिलाड़ी के बीच में बड़ा संघर्ष देखने को मिला। इस बीच दीप्ति ने बॉल को रोका, कष्ट के साथ बॉल को लेकर काफी संघर्ष इस बीच लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार प्रेरित किया जा रहा है उनके कोच प्रो प्लेयर के द्वारा पिंक पैंथर्स को निश्चित रूप से पिंक पैंथर इस मुकाबले में अब तक आगे इस मुकाबले में बना हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ से देखने को मिल रही है नहीं जाने देगी थक गई वो। रेखा मैम जाओ रुक जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कोई कौन सी टीम यहाँ से इस मुकाबले को जीत के आगे बढ़ती है। इस बीच एक और प्रयास है गोल करने का, लेकिन चलो 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 गिरीश सर वहाँ से फिर से बॉल को बॉलिंग की कर देते एक बार देखना ये होगा कि क्या बढ़त को 10 राउंड तक कायम रख पाते हैं या नहीं। और वहीं पे वाइट लाइन की कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से वहाँ पे प्रयास था पिंक पैंथर के द्वारा गोल करने का, लेकिन किसी भी तरीके की संभावना का नजारा पेश करते हुए दोनों ही टीमों के खिलाड़ी कोशिश दोनों ही टीमों की यही नहीं रहेगा कि जल्द से जल्द गोल करें और इस मुकाबले में बढ़त करें। इस तरीके से नहीं होता और अभी भी 2-0 की मुझे बाहर आजा ना तू अंदर ही रहो, तू है वही रहो कीपर, इधर आजा, इधर याला हाथ है नेहा, याला हाथ है भाई जी कुछ करो अभी अभी हो जाना थोड़ी देर।
हॉकी है सबके पीछे से ये लास्ट क्वार्टर होगा। हाँ सर लास्ट क्वार्टर। लास्ट है सर। जो आउट है और जो इन है 3 प्लेयर। सर अब तो लास्ट में जितने बचे हैं वो 13 कहीं कुछ नहीं चल रहा। यहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स के नाम यहाँ पे बता दें। लड़ाई की भूमिका में यहाँ पे मिस्टर दीपक, मिस्टर देवेश अपनी पैनिंग नजर बनाए इस मुकाबले में। टेबल पे जो भूमिका मिस्टर गणेश और अनुराग। गजब का उत्साह यहाँ पे दर्शकों के बीच में। इस खराब मौसम के बावजूद भी यहाँ पे दर्शक बने हुए हैं, हल्की हल्की बारिश में भीगते हुए इस मैच का आनंद लेते हुए और उनको दे रहे हैं एंजॉय करने का। और अब से कुछ ही पलों में अंतिम क्वार्टर है, क्वार्टर वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। अब तक 3 क्वार्टर में पिंक पैंथर के खिलाड़ी आगे चल रहे इस मुकाबले में 2-0 की बढ़त बनाए हुए। निश्चित रूप से यही चाहेंगे यहाँ से कि इस बढ़त को कायम रखें और इस मैच को यहाँ से जीत के जाए। तो बीच कुछ ही पल अब इस चौथे क्वार्टर में बचे हुए दोनों ही निर्णय मिस्टर देवेश मैदान के बीचों बीच। ये पूरा क्वार्टर खेलेंगी। इस बीच व्हाइट लाइंस के खिलाड़ी कुछ नई रणनीति बनाते हुए, उनके प्रो प्लेयर, उनके कैप्टन और उनके कोच मिलकर कुछ नई रणनीति बनाते रहे। कुछ इस जो गोल की बढ़त है उसको बराबर करें और उसके बाद लीड में, यही उनका प्रयास रहेगा। और इस मैच को जीतना चाहेंगे। वहीं पिंक पैंथर यही चाहेगी कि इस जो भी दर्शक उनसे देर से जुड़े हैं उनको फिर से एक बार बता दें कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस शारीरिक शिक्षा विभाग, DSW और यूनिवर्सिटी बोर्ड के सहयोग से एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है जो कि अगस्त से प्रारंभ किया जा चुका है। उसका आज फाइनल क्वार्टर का यहाँ पे शुरुआत कर दी जा चुकी है। देखना ये होगा कि क्या व्हाइट लायंस के खिलाड़ी जो लीड उनको मिली हुई है क्या उसको पार कर पाते हैं। अपना पूरा अनुभव यहाँ पे झोंकना होगा उनके प्रो प्लेयर, उनके कैप्टन और उनके कोच को। इस बीच एक मौका वहाँ पे विविध सर उसको लेंगे, लेकिन किसी भी तरीके की गोल की संभावना को खत्म किया वहाँ पे पिंक पैंथर के खिलाड़ियों के द्वारा। क्वार्टर का यहाँ पे शुरुआत कर दी जा चुकी है। देखना ये होगा कि क्या व्हाइट लायंस के खिलाड़ी जो लीड उनको मिली हुई है क्या उसको पार कर पाते हैं। अपना पूरा अनुभव यहाँ पे झोंकना होगा उनके प्रो प्लेयर, उनके कैप्टन और उनके कोच को। इस बीच एक मौका वहाँ पे विविध सर उसको लेंगे, लेकिन किसी भी तरीके की गोल की संभावना को खत्म किया वहाँ पे पिंक पैंथर के खिलाड़ियों के द्वारा। देखना ये होगा कि इस तरीके से जो टेक्निकल बचना होगा जिसका कि खामियाजा भी टीम को भुगतना पड़ सकता है। इस बीच संघर्ष बॉल को लेकर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच में
कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बेस्ट टीम में। मैच के अंतिम क्षण बचे हैं, दोनों ही टीमों के कोच और कैप्टन को बता दें कि अब आप लोग अपनी बेस्ट टीम को मैदान में उतार सकते हैं। इस बीच कोई फाउंडेशन नहीं है आपके पास, आप अपने बेस्ट 7 प्लेयर्स को वहां पे खिला सकते हैं। बॉल चलने दो फिर कर दो। इस बीच एक और प्रयास वहां पे विविध सर इसको लेंगे, क्या गोल करने में कामयाब हो पाते हैं, लेकिन नहीं हो पाए। इस बीच बॉल फिर से एक बार बाहर जाती है तो उसको गोल। इस बार एक बार फिर से बॉल बता दें कि आपको अंतिम क्षणों में आप अपनी बेस्ट टीम को मैदान में उतार सकते हैं। इस बीच कोई फाउंडेशन नहीं है आपके पास कि आपको सब्स्टिट्यूट करने हैं, तो आप अपनी बेस्ट टीम को मैदान में उतार सकते हैं। दोनों ही टीमों के कोच से मेरी ये गुजारिश है कि वो अपनी बेस्ट टीम को मैदान में खेलने के लिए उतारें। कुछ ही समय इस मुकाबले में बचा हुआ है, देखना ये होगा कि क्या यहाँ से पिंक पैंथर इस बढ़त को बनाए रखती है और इस मुकाबले को जीत पाती है, या फिर व्हाइट लायंस कुछ चमत्कार यहाँ पे करती है। व्हाइट लायंस के खिलाड़ियों को निश्चित रूप से ध्यानचंद जी को याद करना होगा, किस तरीके से बॉल को वो अपने स्टिक से चिपका लिया करते थे, और उसी रणनीति के निश्चित रूप से यहाँ के जो प्रो प्लेयर है उनको नया करना होगा। एक और प्रयास उनके द्वारा, लेकिन देखना होगा कि क्या इसको कन्वर्ट कर पाते हैं, लेकिन फिर से बॉल को रोक लिया गया, फिर से बॉल बाहर जाती है। एक और प्रयास वहां पे, लेकिन फिर से विफल होते हुए इसमें अब ये देखना होगा कि अंतिम जो 2 से 3 मिनट हो पाते हैं व्हाइट लायंस के खिलाड़ी अंतर को कम करने के लिए, क्या कोई गोल कर पाएंगे, क्या गोल का खाता खोल पाएंगे इस मुकाबले में। अभी हम करिए उनको ध्यानचंद जी को याद करना होगा, 5 मिनट के कारण तक मेरी बात पहुंच चुकी है और उन्होंने उसको गोल के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से व्हाइट लायंस के लिए क्या इस गोल को करने के बाद वो एक अगला टाइम आउट ले लो, टाइम आउट ले लो। इस तरीके से आप बढ़त को कम करते हुए अभी भी इस मुकाबले में 2 आगे अंतिम समय में क्या इस बढ़त को कायम कर पाती है नहीं, ये देखना होगा। 3 मिनट यहाँ पे बचे हुए हैं, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को बता दें कि अंतिम 3 मिनट का खेल यहाँ पे बचा हुआ है। क्या इन 3 मिनट में एक बार फिर से वहाँ पे नरेश के द्वारा पिंक पैंथर के खिलाड़ी, लेकिन बॉल बाहर जाती है तो किसी भी प्रकार का गोल होने की संभावना को खत्म करते हुए अभी भी पिंक पैंथर इस मुकाबले में बढ़त बनाए हैं। देखना ये होगा कि क्या अंत तक कायम रख पाती है और यहाँ से मैच जीत पाती है, या फिर चलो विविध से चलो मैच में आगे आते हैं। फिर से एक बार इनको नई रणनीति अपनानी कुछ बचे हुए अगेन विविध सर जाओ पहले आने देना, सेंटर से बाहर आने देना। अभी फिर से दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच कड़े संघर्ष मिल रहा है। बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने बहुत ही अनुशासनात्मक कर दो जल्दी से प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया। इस बीच फिर से विविध सर के द्वारा एक और प्रयास, तो उसको शिल्पी के द्वारा रोक दिया गया, किसी भी तरीके की गोल की संभावना को खत्म करते हुए। चलो अब अड़ गए वहाँ डिफेंस करने लगे। किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं देना चाहते विपक्षी सर को बॉलिंग और कोई भी लड़की पुश कर सकती है। अंतिम क्षण इस मुकाबले में बचे हुए 1.5 से 2 मिनट का समय बचा हुआ है। सेंटर देखना ये होगा कि व्हाइट लायंस इस गोल के अंतर को बराबर कर पाती है और इसको पेनल्टी स्ट्रोक में इस मुकाबले को ले जाती है। उसके पास सर कुछ है भी तो नहीं। अंतिम समय में निश्चित रूप से व्हाइट लायंस को कोशिश करनी होगी कि इस मुकाबले को पेनल्टी स्ट्रोक तक ले जाए, ताकि उसके लिए उनको कम से कम 1 गोल करना ही होगा ताकि यह मुकाबला पेनल्टी स्ट्रोक तक जाए और वहां उनके पास एक और मौका होगा इस मैच को जीतने के लिए। और यहाँ से पिंक पैंथर की टीम यही चाहेगी कि इस बढ़त को कायम रखें और इस मुकाबले को आसानी से यहीं से जीता जा सके।
पेनल्टी स्ट्रोक का मौका यहाँ पे यहाँ पे वाइट लाइन की तरफ से अंजलि ने प्रयास किया था स्ट्रोक का, तो इस तरह से एक मौका इनके पास मिल गया इस मैच को जीतने का। स्कोर जो है लेवल हो चुका है 2-2 के गोल के साथ दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर। अब देखते हैं कि बात ये होगी कि क्या यहाँ से जो वाइट में कहाँ है करेगी तो वो इस मैच को जीत पाएगी। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच। तो अंतिम समय में यही गलती यहाँ पे की थी पिंक पैंथर ने, जो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। अन्यथा पहले तीनों क्वार्टर्स में आगे चल रहे थे, लेकिन अंतिम समय में इस मुकाबले में अपनी गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और अब उसको लेवल हो चुके हैं। पिंक पैंथर ने जो बेहतरीन खेल का प्रदर्शन शुरुआत के 3 क्वार्टर्स में दिखाया था, लेकिन अपनी एक गलती की वजह से उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ओए कोच तेरी टीम देख कहाँ है? ओए कोच टीम देख तेरी कहाँ खड़ी है? ये मुकाबला चले जाएगा। जो टीमें ज्यादा गोल करेंगी उनको विजयी घोषित किया जाएगा। उस टीम को एक और प्रयास यहाँ पे व्हाइट लाइन के द्वारा निश्चित रूप से जो गोल की खुराक उनको मिली थी, इसके बाद नया जोश नया उत्साह उनके अंदर और कुछ अलग जोश के साथ वो खेल रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ से जीत हासिल करना चाहेगी। कोई भी टीम एक गोल करके निश्चित रूप से इस मैच को जीतना चाहेगी। देखना ये होगा कि कौन सी टीम वहाँ पे सफल होती है। प्रयास वहाँ पे पिंक पैंथर के द्वारा, लेकिन किसी भी तरीके की गोल की संभावना को खत्म करते हुए मैच का अंतिम समय बचा हुआ कभी भी रेफरी के द्वारा विसिल बजाई जा सकती है मैच की समाप्ति के लिए। उसके बाद ही मैच पेनल्टी शूट आउट में जाएगा। देखना ये होगा कि कौन इस मैच को वहां से जीतता है। अंतिम समय में निश्चित रूप से दोनों ही टीमों के खिलाड़ी चाहेंगे कि यहाँ से एक गोल करके इस मैच को यहीं पे जीता जा सके। एक बार फिर से बॉल बाहर जाती हुई लगभग 40 सेकंड का समय इस मुकाबले में बचा है। दोनों ही टीमें चाहेंगी कि टाइम लगा रही हैं। समय में एक गोल करके यहीं से इस मुकाबले को जीता जा सके। अरे अब डिफेंस करवा ले, तभी डिफेंस करवाना था वहाँ। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। लगभग 20 सेकंड का समय इस मुकाबले में बचा हुआ है और कैरेट अरे आगे चलो। लगभग मैच समाप्ति है और अभी जो स्कोर है तो 2-2 की बराबरी के साथ दोनों ही टीमें इस मुकाबले में अब तक बराबर की स्थिति में। तो देखना होगा कि जो लास्ट और जिस तरीके से रेफरी के द्वारा मैच की समाप्ति की घोषणा पेनल्टी शूट आउट में होगा और जो भी टीम यहाँ से पेनल्टी शूट में ज्यादा गोल करेगी जो इस मैच को जीतेगी। तो दोनों ही टीमों के कैप्टन से निवेदन है कि वो रेफरी के पास दोनों ही टीमों के कैप्टन कृपया मैच के मैदान के बीच में मिस्टर अजहर हुसैन अंसारी सर और जो दोनों ही रेफरीज के पास जाए। रोमांच भरा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिला था पहले 3 क्वार्टर में, जो कि पिंक पैंथर की टीम बढ़त बनाए हुई थी, लेकिन अंतिम समय में वापसी करते हुए व्हाइट लाइन्स के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन प्रयास उनका रहा। तो इस तरीके से मैच को पेनल्टी शूट आउट तक लेके गए। यही रोमांच है इस खेल का। अंतिम समय तक कुछ भी हो सकता है। जो 2-0 से पीछे चल रही थी व्हाइट लाइन्स की टीम, अंतिम क्षणों में बराबर करते हुए इस मुकाबले हुए और इस मैच का जो रिजल्ट हमारे साथ कमेंटेटर शूट आउट के थ्रू निकलेगा और उसके लिए PhD स्कॉलर श्री विनोद सर और इनके साथ अपना नाम यहाँ पे दर्ज कराएं ताकि पेनल्टी शूट आउट में ये मुकाबला खेला जाएगा और यहाँ से जो भी टीमें ज्यादा गोल करेगी वो टीम यहाँ पे इस मैच की विजेता घोषित की जाएगी।
व्हाइट लाइन्स के बीच में स्कोर बराबर रहा, तो उसके बाद अब मैच के नतीजे के लिए पेनल्टी शूट आउट का इंतजार है और हमारे जो रेफरी हम शूट की शुरुआत करेंगे। और इस बीच दोनों ही टीमों के जो बेस्ट 3 प्लेयर्स हैं वो मैदान के बीच में इस पेनल्टी शूट का प्रयास लेते हुए देखते होगा कि कौन सी टीम अधिक शूट करती है और इस मैच को यहाँ से जीत के जाती है। इस बीच दर्शकों का जोरदार उत्साह, यहाँ पे जोश के अंदर यहाँ पे खेलों को बढ़ाने के लिए अब देखना ये होगा कि कौन सी टीम यहाँ से जीत के आगे जाती है। इस बीच जो पहला पेनल्टी शूट है वो पिंक पैंथर के खिलाड़ी 3 नंबर की जर्सी पहने हुए शिखा मेहरा वहां पे लेंगी प्रयास। देखना ये होगा कि क्या इसको गोल के रूप में कन्वर्ट कर पाती है या नहीं। इस तरीके से विसिल के साथ वो शुरू करेंगे। प्रयास था उनका बहुत ही बेहतरीन प्रयास और इस तरीके से गोल के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो अब लाइन सी थी उसमें उन्होंने गोल किया था, फिर से उन पर भरोसा दिखाया उनकी कैप्टन ने। देखना ये होगा कि क्या अंजलि के द्वारा प्रयास क्या ये गोल पोस्ट तक जाती है, लेकिन नहीं बोल रही व्हाइट लाइन्स की खिलाड़ी उनके कैप्टन के भरोसे को जीत नहीं पाई। वो इस तरह खिलाड़ी प्रेमा दानो जो कि 11 नंबर की जर्सी पहने हुए दूसरा प्रयास अपनी टीम की तरफ से लेंगे। क्या इसको गोल के रूप में कन्वर्ट कर पाती है नहीं, देखना होगा। एक प्रयास अरे यार, लेकिन फिर से विफल रही। तो इस तरीके से इस प्रयास को कन्वर्ट नहीं कर पाई। तो जो स्कोर है पिंक पैंथर के लिए 2 मौके उनको मिले हैं, दोनों में से एक गोल कन्वर्ट कर पाई। अब तक 1-0 की बढ़त बना है, लेकिन यहाँ पे खुद कैप्टन यहाँ पे व्हाइट लाइन्स की कैप्टन यहाँ पे खुद लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं कर पाई उनकी कैप्टन। यहाँ पे अंतिम मौका होगा। अब पिंक पैंथर की 10 नंबर की जर्सी पहने हुए उनके कैप्टन ने उनके भरोसा दिया। नेहा बिष्ट का इसको गोल के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे, ये देखना होगा। ओ गया। तो इस तरीके से टीम में से 2 गोल उन्होंने कर लिए हैं। तो इस तरीके से पिंक पैंथर ने मुकाबला जीत पहले जो उनको मौके मिले थे उन्होंने गोल कन्वर्ट नहीं कर पाई। तो इस तरीके से पिंक पैंथर ने 3 मुकाबले को जीत लिया है। जो शुरुआती समय में पिंक पैंथर ने यहाँ पे बढ़त बनाई थी उसी को कायम रखते हुए में कुछ संघर्ष देखने को मिला था चौथे क्वार्टर में, जिसमें कि व्हाइट लाइन्स ने गोलों की बराबरी की थी, लेकिन अंत में पिंक पैंथर यहाँ पे सफल हुए पेनल्टी शूट और गोल करने। अब जो भी विश्वविद्यालय के हमारे विभाग के छात्र हो कृपया मैदान में आके यहाँ पे लाइन अप। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी टीम विनर रही। सभी से मेरा निवेदन है कि वो यहाँ पे मैदान में लाइन यहाँ पे हमारे बीच में हमारे जो एलुमनाई हो चुके हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, जो BPEd 4th सेमेस्टर पास और दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से तथा दोनों ही जो हमारे BPEd MPEd कोर्स चल रहा है उसके दोनों ही रख दो, थोड़ा सीधी रख दो। इस बीच दोनों ही टीमों के खिलाड़ी रख देना थोड़ा ठीक से। यहाँ पे लाइन अप हो जाए। बहुत आनंद आपने ले लिया इस मुकाबले का। काफी पिंक पैंथर को मैच जीतने के लिए बधाइयाँ, बहुत सारी बधाइयाँ। इस बीच आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द वहाँ पे लाइन अप हो जाए ताकि जो मैच की औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके। हॉकी द्वारा एक छोटा सा हॉकी का मैच आयोजित किया गया था जो कि BPEd और MPEd की छात्राओं के बीच में खेला गया था और जिसमें 2 रिसर्च स्कॉलर प्रो प्लेयर की भूमिका में थे। तो इस मैच में 2 टीमें बनाई गई थी, जो एक टीम पिंक पैंथर और दूसरी टीम व्हाइट लाइन्स। बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा यहाँ पे किया गया, लेकिन अंत में जीत एक ही टीम को मिलती है। लेकिन
प्रदर्शन दोनों ही टीमों का बहुत ही बेहतरीन था और बहुत ही अनुशासनात्मक खेल का प्रदर्शन आप लोगों ने किया, जिसके कि आप बधाई के पात्र हैं दोनों ही टीमें। और इसके बाद जो इस मुकाबले को जीता गया वो पेनल्टी शूट में जीता गया, जो कि पिंक पैंथर के द्वारा 2 शूट इसमें किए गए थे। 3 प्रयास उनको मिले थे, उसमें से 2 शूट उन्होंने किए थे। इस तरीके से उन्होंने मुकाबले को जीता था। इस बीच में इस मैच की जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ता हूँ। जो इस मुकाबले में प्रत्येक मैच के बाद हम एक मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच, जो कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा नाम की घोषणा करें। कैमरा किसके पास है? कैमरा खोलो आप। अंकित ले ले, अंकित फोटो ले ले, फोटो ले लो अपनी फोन की। अब मैं विभागाध्यक्ष डॉक्टर हीरा लाल सर से निवेदन करूंगा कि वो अंजलि आगे आ जाए प्लीज मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए। और इसके लिए मैं डॉक्टर हीरा सर बहुत बधाई अंजलि बेहतरीन खेल दिखाने के लिए। इस बीच हमारे पास एक आकर्षक ट्रॉफी जो कि जो विनिंग टीम को मिलेगी, इसके लिए मैं विभाग के सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मुकुल भट्ट सर को बुलाना चाहूंगा कि वो विजेता ट्रॉफी को प्रदान करें। साथ में हीरा सर से भी निवेदन करूंगा कि विजेता ट्रॉफी और इसके लिए पिंक पैंथर के कैप्टन को पूरी टीम को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा इस आकर्षक ट्रॉफी को लेने के लिए। सभी खिलाड़ियों बोलते हो इस बीच एक आकर्षक ट्रॉफी प्राप्त करते हुए यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो आज सुबह का कार्यक्रम था जिसमें पहले एरोबिक डांस का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया के द्वारा। इसके बाद हॉकी का मैच खेला गया। तो आज का जो प्रोग्राम था वो आगे की कार्रवाई बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि खेल हमारे जीवन का एक होता है। खेल में हार और जीत दो हार और और आपको महसूस कर रहे हो खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पर हमें सीखने को मिलता है। खेल के द्वारा ही हम सबसे पहले हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है इस चीज़ की कि हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं अपने फेलियर को, मतलब अपनी असफलताओं को कैसे कम किया जाए और उससे सीख लेकर के आगे हम विजय कैसे हासिल करें। ये सीख खेल द्वारा जीवन का हिस्सा है। खेल के माध्यम से ही हम जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं और अपने आप को संतुलित अवस्था में रखकर आगे बढ़ने की तरफ कार्य करते हैं। तो आज का आपको देखा कि जिस प्रकार से हमारी दो एरोबिक्स इसमें बच्चों ने अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को पसंद आया होगा। और दूसरा जो खेल का आयोजन जो छात्राओं के बीच में था, तो आप ही देख सकते हैं कि हमने दोनों बातों पर गौर किया, दोनों बातों को ध्यान में रखा अपने लक्ष्य को, मतलब खेल राष्ट्रीय खेल दिवस की जो 2 लक्ष्य हमने पढ़ी थी उसके को केंद्रित रखते हुए हमने एरोबिक्स और हॉकी टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया। अब आगे की कड़ी में पुरस्कार वितरण के बाद जहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारे अतिथि विषम परिस्थितियों में यहाँ जहाँ बारिश हो रही थी कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे,
बच्चों का भी हौसला कहीं से कम नहीं हुआ। आप देख पा रहे थे कि ये एरोबिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन बारिश के दौरान चल रहा था। तो मैं आपके हौसले को का स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और जोरदार तालियों के बीच में चाहूँगा कि उन बच्चों का भी हौसला अफजाई। कार्यक्रम की अंतिम औपचारिकता के रूप में है। हमारे साथ हमारे अतिथि सुबह से जुड़े हुए हैं। अब मैं चाहूँगा कि हमारे डिपार्टमेंट की ओर से मिस्टर अजहर हुसैन अंसारी आकर के हमारे अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। Thank you, sir. Now, on the behalf of Department of Physical Education and on a personal behalf, I would like to thank our chief guest for the day, Dr. Mukulkar sir, for sparing his valuable time and being a part of our program. And in this series, next I would like to thank Dr. Hiralal Yadav sir, HOD Department of Physical Education, for giving us his valuable time. And in the series of thanks, I would like to thank all the faculty members of Department of Physical Education, PhD scholars, and last but not the least, all the students of Department of Physical Education. I would like to thank you all for being a part of this program. Once again, thank you everyone. धन्यवाद अजय। जैसा कि हमने देखिए कि अभी हम अंतिम पड़ाव पे हैं, तो बच्चों को जिन्होंने सबने काफ़ी अपनी मेहनत की इसे सजाने की, संवारने की, साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में। तो अब अंतिम रूप में मैं चाहूँगा कि अब हम बच्चों का जो है कुछ स्थान वितरण करें।